My name is Shreyas, and I'm into Web3 from last 2.5 years. And I currently, was about to introduce you yes, sure, till sure, now. sure. Okay, so I am Ashi, your host for today. So let's start. Um, how many of you have heard of the term Web3 and thought, yeah, I kind of get it, but not really? Okay, and how many of you are just here because blockchain sounds cool and futuristic? Well, you are in the right place because today we are not just going to throw buzzwords. We are going to break things down, get interactive, and by the end of session, you will leave with a much clearer understanding of what Web3 and blockchain actually mean to you. And to guide us through this journey, we have someone who deeply is involved in the space. Meet Shreyas Singh Harwar, a Web3 enthusiast, blockchain advocate, and currently the Associate Vice President of Business Development at The Reliable Jobs. He is actively shaping the industry, attending blockchain events, working with projects that are redefining how we think about internet. Oh, and did I miss that he's also a Cypher advocate at Cypher Blockchain? But here's the best part. This isn't just another lecture. Shreyas believes in real world communications, so get ready to ask your questions, share thoughts, and challenge ideas because this session is all about learning, unlearning, and rethinking the internet as we know it. So, without further ado, let's give a warm round of applause to Shreyas. The stage is yours now. Shreyas, if you are comfortable, you Yeah, can start. sorry, guys. Actually, there was a issue from my side. That was a network issue. So yeah, we are ready to initiate the session, right? Yeah, the stage is yours now. So yes, I'll be crisp and like short with the things. See, since we have like how much time, Ashi? 1 hour, right? Okay. So usually I take a lot of sessions where I talk about mm, yeah, I'm audible, right? No. Yeah, Yes, you are. Sure. So basically, we break down into 4 2-hour workshops, but I'll be like summing this up in this single hour. So I'll be like fast. So you need to cope up with this, but I won't get into too much details. Let's start with this. We have Web 2.0, right? So Web 2.0 is everything that we are currently using. It might contain your Instagram, Facebook, all the social medias that you use, all the web services that you use. It might be Gmail, it might be your domain hostings and everything. The internet works currently na, on the infrastructure. It's called Web 2, right? So the story begins like this ki, there was a white paper in 97 90s. Someone pitched in a new form of technology. There's a lot of history behind it. So there was a new form of technology that how we can reshape the current infrastructures to make it more reliable and make it more people dependent, right? And it must be decentralized, it's immutable, and there's a lot of benefits. And if you'll ask me the disadvantages of the same, there was none,
right, in the white paper. The disadvantages were none because there were challenges, definitely, like how we are going to implement it, how we are going to like position it in the market, how people will like attract themselves in this domain, particularly in Web3. So these were the challenges, but the disadvantages that were there in the internet was like very few. There was none actually. So, how many of you guys think there are problems with current working of the internet? You can just raise your hand. So, like, say it if you think. And what are the problems you might like chip in with the chat? What problem have you faced with the current working of the internet? Yes, Chalaudin. You want to say something, or you can like? Yes, yes, yes. Are you able to hear me? Yes, yes. Yeah. So one example is with banking systems. Mm-hmm. So, Correct. for Correct. example, we all have our money in bank accounts. Mm-hmm. But then the thing is, if the bank suddenly goes down, your money is basically trapped, so you can't access it. So that's one problem. Yeah, definitely. Jalauddin is very much right. And second, there's no transparency with the banks. We have seen the 2008 crash. We haven't, but our fathers have seen the 2008 crash. It hasn't impacted India much because Indian audience was so not much educated at that time. The majority of the Indian citizens were not affected. Actually, I would say because people were not engaged in directly and stocks and all. Right. So हम लोग को उसका ना क्रक्स समझ में नहीं आता कि 2008 was कितना crucial, but actually it was very crucial for the people who were directly engaging with the market and their money was in the banks and all the major US market, European markets, they were crashed, the banks were crashing, people were losing their money. So we have seen so much of a problem. The world has seen so much of a problem with the banking system, as Jalauddin has mentioned. Like I'll give you an example also. There's a company called FiberNet solving this banking problem. There was one more issue ki the blockchain is not compliant with the government, right? You guys must know ki if a government has banned uh, mm, like incoming like take some foreign donations or something like this, but if you are using cryptocurrencies, there's no ban. You can directly like send it to literally any organization. It can be terrorist organization or it can be anti-national nationalist to some governments also. So there's a lot of problems with the finance DeFi here also in the blockchain. So the 5net is doing currently, they are solving it with a like they have all the regulated compliance with the government. They're just making the current banking systems better in London, if you will see, majorly in UK. So they are funded by Kira Studios also. So there's a lot of companies that will come by in between when I start. So we can start with the fundamentals of the blockchain. So I would say it was a new form of technology that was spaced in by those people, that some giants, right? Then suddenly a organization, a person, or nobody knows. There's a name pop up, Satoshi Nakamoto. How many of you guys have heard of it? Satoshi Nakamoto. Sidhu has heard of it, right? So okay, Shashank has heard of it. Like few guys have heard of it. Satoshi Nakamoto suddenly launched Bitcoin in 2006 or something. Yeah, as a founder of Bitcoin. But the thing is, ki nobody knows he is a person or he is an organization or he is what. Nobody still knows he is dead or alive, right? It's that much anonymous. So it was a community-driven initiative, Bitcoin, which was launched by Satoshi Nakamoto, which laid the foundation of entire Web3, right? So I'll be like delving into the technologies, like how things are working different technology-wise in blockchain, right? So how our current internet works and how technology is differentiated in Web3. So for this, I'll be sharing you a presentation. My like team made it a year back. Actually, it was when I was working with Tezos. Tezos is also one of the chains, and it's into Web3. So you guys are able to see? Yes. Okay. So here's the case. How many of you guys know about hashing already? What is hashing? Hashing algorithms works.
Okay, there are few of the guys. So how many of you guys knows about basic about encryption? There must be a lot of guys who knows about encryption. So the thing is now, hashing and encryption are two different terms. Many people confuse this. So basically hashing goes with something like कि वो वाला कोड सुना है कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा. Like कितने लोगों ने सुन रखा है? Not being political here, guys. You can raise your hands. हाँ. So it's something like this. Just imagine this. कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा. It's similarly like this. So there's a hash function in hashing, right? So in this hash function is like the same आलू सोना वाली machine. So when you put on आलू, right? आलू which can be plain text, which can be your any supported file. It can be your MP4 file, video, text, and literally it can be anything, any sort of information, right? We know all the information is stored in 0 and 1 form, right? Bit, it might be a video, photo, or a plain text, or a PDF file, or any form of file, right? So when this file is passed through the hashing algorithm, it generates a hash text. So it might be a video, it might be a photo, but it will generate a text, right? And what hashing algorithm we use is SHA-256 actually, right? I'll be skipping this. SHA-256. So SHA-256 counts for secured hashing algorithm 256, right? So it contains 256 bit of output, right? If I go too much technical, you guys can let me know. I'm just being like over the top, so you'll be able to understand. Nothing too much technical in this presentation. So basically, 256 bit of output is generated for every input, every form of input, right? Which is then converted into 64 hexadecimal characters. If you guys in BTech or something, you will be learning about it, or you already have learned about it. So this is in the course for the BTech and CS guys mostly. So the 64 hexadecimal characters generated, and this is hashed form, right? It has a few of the properties, right? If you'll go into hashing algorithm, it will be one way, like आलू से सोना ही निकलेगा, सोने से वापस आलू नहीं बनेगा. If you see, अब इसका फायदा क्या है कि let's say you put on a text, let's say developer community and their password for the email or something, right? So if you'll pass this through this hashing algorithm, it will generate a specific text, right? Our text will be hashed. By seeing the text, the hashed text, you will not be able to retrieve the actual information directly, right? उसके अलग मैकेनिज्म होते हैं, उसके लिए अलग हैशिंग रीहैशिंग एल्गोरिथम्स होती हैं, which are based dependent on keys, and public and private keys will be going through that also. So वो अलग पूरा सिनेरियो होता है कि how this is done. So अगर जो over the top देखा जाए तो it happens like it's one way. Once the data is hashed, not encrypted, there's written encrypted data, it's not encrypted. Once the data has been hashed, तो आप उसको डायरेक्टली रिट्रीव नहीं कर सकते, राइट? मैं इस पॉइंट पे बार बार जोर इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. व्हेन यू विल सी इन द वर्ल्ड ऑफ ब्लॉकचेन, एवरीथिंग इज हैश्ड मल्टीपल टाइम्स, राइट? Everything is hashed. You can see it. You must have heard this, na, ki blockchain is transparent. How many of you guys have heard this? Blockchain is transparent. Like most of the guys have heard it कि blockchain is transparent. So एक question सबके दिमाग में आया होगा कि how the blockchain is secure as well as transparent, right? कि अगर जो मैं अपने अकाउंट से खोल के दिखा दूं आपको कि these are my accounts, so how am I secured then? मेरी तो anonymity गई. So how is blockchain is secured, anonymous, and transparent at the same time? This question must have arisen. So इसका simple solution है कि because the every data is hashed, you will never be able to retrieve that information. So you'll be knowing कि transactions are happening from this hashed account to this hashed account. These are the data. These are the hashed data that has been transferred. So there's a transparency. You'll be able to see कि things are working out, right? But you won't be able to see कि who is doing what. Right, so there's this catch. Then they are deterministic, right? Like if I put in developers community at a time through this algorithm, so it retrieves and it like gives me back the same output. Like for example, I'll tell you, if you put ABC na and it gives you 726, 100 times you will put ABC, it will give you 726 only, right? So for every definite thing,
every definite form of input, there's a definite form of output that will be generated, right? ऐसा नहीं है encryption में what happens is कि with the change in time ना, the encryption output changes. जब आप encrypt करते हो कोई चीज, so what happens is when you must have seen WhatsApp into an encryption, right? It's encrypted, not hashed. So when it's encrypted na, so if you'll put on high on encryption, it will be something else in output. When you'll put on high after some time, it will be something else. But in SHA-256, every high accounts for the same thing. I can demonstrate this also if you'll find some time in the session itself. Then it's a fast computation. We all know कि computation fast होगा तभी तो चीजें workout होंगी. It can withstand collision. Let's say collision withstand का मतलब ये होता है कि hashing algorithms they withstand collision how they basically अगर जो हाई के लिए एक स्पेसिफिक आउटपुट जनरेट हो रहा है तो किसी और वर्ल्ड के लिए सेम स्पेसिफिक आउटपुट जनरेट नहीं होगा. Now, then the avalanche effect. Avalanche effect is something like if you are writing high and there's some particular output, with a change in even a minor change in input, drastically changes output, so that you won't be able to find out as a trial and error methods. So this is different kind of technicalities. Ki how hashing is done. There's a lot of things. Then with the help of hashing, we generate private and public keys, right? So there's a two thing. You know your email, you know your password, right? So let's say somebody volunteers here. Some like two guys. I need two guys to volunteer. I'll briefly explain the role of keys. Okay, Jalaluddin is there. The second one must be. Let's take Aman for this, and Shuman will take for next demonstration. So Jalaluddin and Aman, if you guys can like switch on your mics. Hi. Okay. Hi. So let's say Jalaluddin has like some message for Aman, and he wants to send it, right? So what he'll do now, he'll take Aman's email address, right? And from his email address, which he access it using email and password, right? And he'll send it directly to Aman. That's how things work in Web2 internet, right? एक तो कहने की चीज हुई कि ईमेल कर दिया. वो ईमेल कर दिया का प्रोसेस कैसा आता है कि यू विल साइन इन टू योर ईमेल ना इवेंचुअली, कभी ना कभी तो करा होगा ना. सो यू हैव यूज्ड योर पब्लिक की एंड प्राइवेट की. In that case, Web3 में public key is the email address, your address, which will be public to everyone, but it will be in the form of hashed code, in a form of key. That's how we make sure that you are anonymous, right? Now, in that case, Jalaluddin, you will tell me you have a message to send to Aman. What will you do with the help of public and private keys? In Web3. Yes, in Web3. I'm not sure. Okay, so it will be like कि अभी के केस. अच्छा, Web2 में कैसे आप मैसेज ट्रांसफर करोगे अमन से? So I'll be using Gmail. You'll be using Gmail. You'll take the Aman's Gmail. You'll take it and you'll send it to Aman, whatever the text is there, with the help of Aman's email, right? Similarly, it happens in Web3 na. You'll take Aman's public key and you'll send it to Aman. You'll just attach a message with the public key and you'll send it to Aman. That's how things work. Okay? It might be crypto transactions. It might be some data. It might be some assets or something. It can be anything, right? You're sending to Aman. You'll send it like this only. So you'll take the receiver's public key, right? And now you know the role of private key. क्या होता है? Private key का role is just as a password. So if you want to send something, you need to log on into your account, right? And you'll be using your private key to log in. You'll be using, but in this case, Web3 में, you use your private key for everything. Now what happens is कि how will Aman get to know that you have sent him some message? Aman will use his private key to access the message. Simple सा email password वाला game है, public private key का. So if you want to imagine it, you can imagine it like this. Then moving on to next things now. Public key, private key, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, I guess. Yeah, cool. So transactions UTXOs की बात कर लो, इतना deep में नहीं जाएंगे. I'll be giving you कि क्या होता है UTXOs के ऊपर. I guess I won't be able to talk. It's a like long topic. I'll be going like this.
सो जो ट्रांजैक्शंस होती है ना ब्लॉकचेन में वो कैसे होती हैं, लाइक करेंटली अंशुमन वाज देयर ना, अंशुमन कैन यू ओपन योर माइक? Yes. या अंशुमन, सो आप ये बताओ कि लेट्स से कि आई हैव गिवन यू 100 रुपीज ऑन योर पेटीएम एंड लाइक लेट्स से आशी एंड जलालुद्दीन हैज गिवन यू 100 ईच, राइट? तो आपके अकाउंट में कितने रुपए होंगे अकाउंट में? Can you repeat again? लेट्स से मैंने आशी और जलालुद्दीन ने आपको 100 रुपीज ईच दिया, आपके अकाउंट में कितने रुपए होंगे? 200, 300, 3 लोगों ने दिया तो 300, राइट? 300 अब इन rupees. 300 में वुड यू बी एबल टू डिस्टिंग्विश कि कौन से 100 किसके हैं? No. नो, एंड दिस साउंड्स वेरी absurd, राइट? कि मैं ऐसा Yeah. बोल भी क्यों रहा हूँ, क्या जरूरत है करने की? आई टेल यू क्या जरूरत है करने की। ये इसमें आई विल कम व्हाट हैपेंस इन ब्लॉकचेन ना, यू विल बी एबल टू से कि कौन से पैसे किसके हैं। सो लेट्स से कि आई हैव अ फ्रेंड हियर, राइट? Harsh, Anubhav, and Shyam and Rajiv. These guys have given me these much amount of money, right? And in my bank account. तो मेरे बैंक अकाउंट में ये सब सम अप होके ना, इनका सम कितना आ रहा है? You will see 617 to 9 and 1.4 BTC, right? तो 1.4 BTC सम अप हो जाए, वो 1.3 1.4, राइट? सो 1.4 BTC अगर सम अप हो जाए हमारे अकाउंट में, तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि किससे कौन सा पैसा आया, राइट? विकास हैज गिवन 1.4, राइट? सो ये 1.4 BTC हमें पता नहीं चलता जनरली हमारे अकाउंट में वेब 2 में, बट ट्रांजैक्शंस कैसे होती है वेब 3 में कि वो ट्रांजैक्शन स्टोर ही ऐसे होंगी, राइट? हर्ष, अनुभव, श्याम, राजीव इसी फॉर्म में स्टोर रहेंगी ट्रांजैक्शंस। ये कभी भी हमें विजिबल तो दिखाएगा कि हमारे अकाउंट में 1.4 BTC है, बट बैकएंड में चीजें ऐसे ही स्टोर होगी, बैकएंड ऐसे वर्क करता है। जबकि रियल लाइफ में क्या होता है, बैकएंड ऐसे वर्क नहीं करता, पैसे आ गए पैसे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, राइट? यू विल नेवर एबल टू नो कि कौन सा पैसा किससे आया। इट वर्क्स लाइक कैश एक्चुअली। सो ये सारी चीजें हैं। एंड नाउ इफ यू वांट टू लेट्स से बाय अ पिज्जा फॉर 1.3 BTC, राइट? तो ये हर्ष के ट्रांजैक्शन 0.2 BTC, श्याम के ट्रांजैक्शन से और राजीव के ट्रांजैक्शन से लेगा, एंड इट विल टेल in backend, it will happen like this. It will tell कि अनुभव वाला ना 100 रुपए आपके पास है अभी। So this is how things happens. अब इसके 100 टेक्निकल यूज केसेस हैं कि ऐसा क्यों करते हैं। 100 नहीं, एक्चुअली 1000 यूज केसेस है, बट this is the way technology works in backend in blockchain, right? So अब इससे एक मेजर फायदा मैं आपको बताऊं, you guys must have seen in YouTube a lot of ads कि ये बच्चा बीमार है, इसके दवाई के लिए 18 लाख रुपए चाहिए, डोनेट 100 रुपीज ईच। देखे होंगे ऐड आप लोगों ने? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस हैव सीन दिस, राइट? इतने बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे, आई एम वेरी श्योर। कितने लोगों का मन किया कि मैं दे दूं, बट जस्ट बिकॉज कि यू नो कि फ्रॉड हो सकता है, तुमने नहीं दिया। या सो देयर आर पीपल, सबका मन किया होगा एक बार को दे दो, क्योंकि 100 रुपीज नॉट मच, यू कैन डोनेट इट फॉर द विजुअल्स, लाइक विजुअल्स आर वेरी मच कंपेलिंग, you want to help them out, but you know ki 99% chances are there ki it's a fraud. That's why you don't do it, and it's very fair thing to do. If you think something is fraud, you should not, right? So यहाँ पे ना ये चीज एलिमिनेट कर देती है। So let's say you have given to an NGO. अब ठीक है, एक NGO ने अपना ब्लॉकचेन अकाउंट बनाया। Now NGO के पास ये राइट है कि या तो वो ब्लॉकचेन अकाउंट अपना ट्रांसपेरेंट बनाए, या तो अपना जो ट्रांजेक्शन अकाउंट है वो ट्रांसपेरेंट रखे अपना एप्लीकेशन, या तो अपना एप्लीकेशन क्लोज रखे, छुपा ओपेक रखे, छिपा के रखे, राइट? वो लोगों को ना दिखाए, पब्लिकली अवेलेबल ना हो, प्राइवेट हो। ये तो पब्लिक रखे। अब एक एनजीओ है तो उसको कायदे से पब्लिक रखना चाहिए, राइट? गेटिंग अ पॉइंट? अपना अकाउंट, अपने बुक्स को पब्लिक रखना चाहिए एनजीओ को, बिकॉज एनजीओ इज नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। उनका कोई कॉम्पिटिशन ये होता ही नहीं है, दे आर फॉर द वेलबींग ऑफ सोसाइटी, दे शुड कीप देयर ट्रांजेक्शंस ट्रांसपेरेंट एंड पब्लिक. Now the transactions are transparent public. Now you'll be able to see this कि Jalaluddin has given 100 rupees to the person, right? Now where they are spending it, कि मेरे 100 रुपए कहाँ स्पेंड हो रहा है, ठीक है? So it can be like ZK proof, ये एक आता है zero knowledge kind of thing, कि you'll be able to know कि my transactions are utilized in which way, राइट? तो आपका ब्लैक में पैसा जाना या करप्शन के चांसेस यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं। यू विल बी एबल टू ट्रैक योर मनी टू सम एक्सटेंट, डेफिनेटली, राइट? फिर यहाँ पे भी देयर आर लॉट ऑफ वेज। तो एक ये बहुत मेजर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एनजीओस की फंडिंग की। देन दे आर वॉलेट्स एक्चुअली, तो ये सारे पैसे वॉलेट में इस तरीके से शेयर होते हैं जैसे मैंने बताया था। नाउ
there are 3 types of wallet. एक तो होता है सॉफ्टवेयर वॉलेट, there's a company like Binance and everything, जहाँ पे आपके सारे अमाउंट सेव होते हैं, राइट? You store your bitcoins and everything in wallets. Then there are hardware wallets. It's kind of pen drive. तो आपके पास एक पेन ड्राइव होती है जिसपे आप बिटकॉइन स्टोर करते होंगे. How many of you guys have seen Big Bang Theory? Yeah, Anshuman. And there must be other people also who have seen Big Bang Theory. So what happens is कि उसमें भी एक चीज दिखाई थी कि जस्ट नॉट जस्ट बिग बैंग थ्योरी, बहुत जगह आपने देखा होगा कि यार मेरी पेन ड्राइव थी जिसमें 20 बिटकॉइन थे, घूम गई, मिल नहीं रही है, आज को मैं करोड़पति होता, काइंड ऑफ दिस थिंग, राइट? बहुत सुना होगा, बहुत मीम्स देखे होंगे, रील्स देखे होंगे अराउंड दिस कि वी हैव अ पेन ड्राइव. दैट पेन ड्राइव इज हार्डवेयर वॉलेट, राइट? इट्स नॉट अ पेन ड्राइव जिसपे आप रखते हो. एक अलग से ही सिक्योर्ड एंड इंक्रिप्टेड हार्डवेयर वॉलेट होते हैं. इन दीज आर इन द फॉर्म ऑफ पेन ड्राइव्स. देखने में दे आर फॉर पेन ड्राइव्स बट दे आर वॉलेट्स एक्चुअली. उसमें यू कैन स्टोर योर क्रिप्टो करेंसीज. एंड देन थर्ड इज लाइक पेपर वॉलेट्स. पेपर वॉलेट्स क्या होता है कि आपका पब्लिक और प्राइवेट की है, ठीक है, आपने पेपर में लिखा और उसको फोल्ड करके रख लिया. सबसे सिक्योर फ्रेज की, एग्जैक्टली विकास इज टेलिंग इज फ्रेज की, वही है, वही सेम चीज कि इफ यू वांट टू एक्सेस योर वॉलेट ना, यू नीड अ फ्रेज की. अब क्या होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वॉलेट्स सबके अलग अलग होते हैं. इन अब तो मिक्सअप होके बनने लगी सारी चीजें, बट ये 3 मैं डिस्टिंग्विश बताऊं. तो पेपर इज समथिंग कि आपने फ्रेज की को पेपर में कहीं लिख के रख लिया, एंड दैट्स अ मोस्ट सिक्योर वे टू एक्सेस योर अकाउंट्स, कि उस फ्रेज की को यूज करके यू कैन एक्सेस योर अकाउंट्स अनलिमिटेड टाइम. तो ये सारी चीजें होती हैं. देयर कस्टोडियल, नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स, दीज आर डिफरेंट थिंग्स. इसमें वी वोंट डेल्व इनटू, इतना काम का नहीं है आपके लिए अभी के लिए. देन व्हाट इज ब्लॉकचेन? So blockchain is basically distributed immutable ledger which is completely transparent, right? In major cases. Ab you will see that there are private blockchain also, like you will see root ledger. Root ledger is a private blockchain. Hyperledger is there for a private blockchain. But एक basic definition देखे जब blockchain की थी तब वो distributed immutable ledger थी. अब if you guys are not able to understand what is this, so I'll tell you. Blockchain is distributed, right? डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है, वील गेट इनटू दिस आल्सो. इट्स इम्यूटेबल. इम्यूटेबल मतलब कि वंस एनी इंफॉर्मेशन हैज बीन फीडेड इन ब्लॉकचेन इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स, इट कांट बी चेंज्ड. सो लेट्स से कि आपने एक बार गलत इंफॉर्मेशन डाल दी और वो वेरीफाई होकर चली गई. गलत इंफॉर्मेशन ऐसे डाल दी कि आपने अपना एक ब्लॉक में आपको अपना आइडेंटिटी बायोडाटा सेव करना है, बायोडाटा गलत डाल दिया, तब फिर वो चेंज नहीं होगा आपका. अब फिर यहाँ पे 100 क्वेश्चंस आते हैं कि चेंज नहीं होगा तो कैसे फीजिबल है, क्या कैसे. सी, ये सब ना बहुत बेसिक डेफिनेशंस है कि क्या क्या होना चाहिए. आपको पता है कि बेसिक पे कुछ नहीं चलता, हर जगह थोड़े थोड़ा मिक्सअप्स होते हैं. वेब3 का नहीं, दीज आर नॉट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स विल कम इन एक्शन आफ्टरवर्ड्स. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स तो ब्लॉकचेन पे अलग से एग्जीक्यूट होते हैं. इट्स लाइक कि आप ब्लॉक डेटा में कुछ सेव करते हो तो वंस इट्स हैज बीन सेव्ड वो चेंज नहीं होता है. फिर उसके बाद वहां पे देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स कि क्यों चेंज नहीं होता, फिर कैसे है, उसके 100 सॉल्यूशंस हैं. इफ यू गाइस हैव दिस डाउट तो हम लोग एंड में इसको सॉल्व भी कर लेंगे, राइट? हर एक यूज केसेस के जहां जहां प्रॉब्लम आती है ना, उसके 100 सॉल्यूशन ऑलरेडी हैं हम पे वेब3 पे. बट हाँ, प्रॉब्लम हम खुद क्रिएट करते हैं. दैट्स द केस. Ledger is something means where you keep the track of things. So it's like a database. You can say ledger is database, and it is completely transparent. I hope transparent के साथ किसी को प्रॉब्लम नहीं है. So blockchain is something like this. ठीक है. अब इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड. तो डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे, I'll tell you. पहले लेट्स कम टू these slides. ठीक है. सेंट्रलाइज नेटवर्क कैसे काम करता है. So you guys know about Facebook, Meta, right? मेटा का सर्वर है, सर्वर रूम्स है मेटा के बेसिकली, मोस्टली इन कैलिफोर्निया एंड एवरीवेयर. सो उनके खुद के सर्वर रूम्स है, बिल्डिंग्स है जिसमें सर्वर्स है उनके, राइट? आपका सारा डेटा राउट होते होते मेटा के सर्वर रूम्स में जाता है, राइट? सो व्हेन अ क्लाइंट वांट्स टू फेच, लेट्स आपको एक रील देखनी है तो आप मेटा के सर्वर रूम से रिक्वेस्ट करते हो कि ऐसे रिक्वेस्ट करते हो कि आई वांट टू वॉच अ रील, राइट? एंड इन रियल टाइम इट रिस्पॉन्ड्स यू, ठीक है ये लो रील देख लो, नेक्स्ट रील, नेक्स्ट रील. सो हर वो मिली सेकंड में ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं. दिस इज हाउ सेंट्रलाइज सिस्टम वर्क्स, राइट? आपको फाइल सेंड कर देगा. नाउ लेट्स से अ हैकर कम्स इन और उसने सेंट्रलाइज डेटाबेस को क्रैक कर दिया. पास्ट में हुआ है, सबने सुना है ये चीज कि किसी के सर्वर में घुस गया, नासा के सर्वर में घुस गया, बहुत आते थे, राइट? सो वो बंदा अगर जो सर्वर को ही क्रैक कर गया, उस बंदे को एक जगह पे चोट मारनी है एंड ही विल बी एबल टू एक्सेस बाइबिट. इज अ ग्रेट एग्जांपल. बाइबिट के साथ भी सेम चीज हुई थी. दीज गाइज आर सो डम, बाइबिट वाले,
कि ये चीज मैं 2 साल से बता रहा हूँ लोगों को, ठीक है, ऐसा नहीं उनको पता नहीं था, उनको पता था, बट दे टूक अ रिस्क, ताकि उनका खुद का जो सिस्टम है ना वो खुद जेपरडाइज हुआ उनकी खुद की गलती से, राइट। सो अब उसके बाद भी उनके पास अलग चैलेंजेस थे, दैट्स अ डिफरेंट केस, अलग स्टोरी है, बट ठीक है, उन्होंने जानबूझ के रिस्क पे रखा था अपनी सारी चीजें। सो ये सारी चीजें जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, बायबिट पे जिन लोगों का भी लॉस हुआ ना, इन ऑल जिन लोगों ने ट्रस्ट किया, दीज गाइज वर नॉट अवेयर ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स, राइट। इफ यू गाइज आर अवेयर ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स कि कैसे वर्क करता है, क्या नहीं करना चाहिए, तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि क्या स्कैम है वेब3 में और क्या रियलिटी है, राइट। सो दिस इज द केस। अब इसके बाद क्या हुआ कि इस बंदे ने सर्वर हैक कर लिया, तो उसको सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ मिल गई, बट हमारा क्या होता है, हमारा ब्लॉकचेन होता है डिस्ट्रीब्यूटेड पीयर टू पीयर नेटवर्क। सो हमारा ना कोई सर्वर, एक सर्वर नहीं होता। लेट्स से वी आर 40 पीपल हियर, राइट, अराउंड 40 पीपल हियर, तो हम 40 लोगों ने मिलके एक सर्वर बनाया, तो उसमें थोड़े से जीपीयू मेरे यूज होंगे, थोड़ी सी स्टोरेज, थोड़े से जीपीयू मेरे यूज होंगे, थोड़े से जलालुद्दीन के, चंद्रशेखर के, आशी के, मनोज के, एंड वी फॉर्म अ डिस्ट्रीब्यूटेड पीयर टू पीयर नेटवर्क अमंग आवरसेल्व्स, राइट। ऐसे नेटवर्क बनता है वेब3 पे। अब कोई भी इंफॉर्मेशन आई ना, तो वो मुझ पे या तुम पे नहीं आएगी, वो हमारे 40 लोग के नेटवर्क पे आएगी, और यही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पैसा लगता है वेब3 पे। तो तुम देखो, इथीरियम उठा लो, तुम कोई भी चेन उठा लो, उसमें इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स बनते हैं। नाउ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट बिटकॉइन माइनिंग। हाउ मेनी गाइस ऑफ यू हर्ड अबाउट क्रिप्टो माइनिंग, राइट। तो क्रिप्टो माइनिंग का पूरा कॉन्सेप्ट ही यही है। यस, क्रिप्टो माइनिंग पूरा कंसेप्ट ही है कि व्हेन यू गो इनटू माइनिंग ना, तो तुम अपना सिस्टम लेंड कर रहे हो नेटवर्क को, तो आपका सिस्टम को यूज करता है फॉर मेकिंग दिस डिस्ट्रीब्यूटेड पीयर टू पीयर नेटवर्क, उसके बदले में आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। व्हेन योर सिस्टम इज बीइंग यूज्ड, तो कैलकुलेशन होके कि कितना यूज हुआ, कितने जीपीयूज यूज हुए, उसके बेस पे यू गेट रिवॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ, या इट यूजेस जीपीयू पावर, डेफिनेटली इट यूज जीपीयू पावर। इसका रीजन है क्यों यूज करता है, आई विल कम इनटू दिस आल्सो जब मैं प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ वर्क समझाऊंगा, आफ्टर दिस ओनली, राइट। तो जीपीयू क्या यूज है, सो बेसिकली ये यूज करता है जीपीयू का कि ऐसे ऐसे चीजें हैं, और उसके बेस पर आपको रिवॉर्ड देता है, राइट। सो दिस इज अ केस कि नेटवर्क ऐसा दिखता है, तो आपका सेंट्रलाइज नेटवर्क ऐसा दिखेगा, लाइक सिंगल जगह पर एक होगा, ये ओवर द ग्लोब डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, राइट। अब इसमें एक अंतर क्या है, आई टेल यू। लेट्स से यहाँ पे बंदे को हैक करना था, तो उसने एक सेंट्रलाइज सर्वर पे अटैक किया और हैक कर लिया, राइट। यहाँ पे उसको एट अ टाइम 40 मिल रहे हैं, राइट। इन रियल लाइफ देयर आर मिलियंस ऑफ नोड्स, मिलियंस ऑफ पीयर्स कनेक्टेड टू अ इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब एक बंदे को हैक करना है तो मिलियंस ऑफ नोड्स की सिक्योरिटी को बाईपास करना है। एक बंदे की, 2 बंदे की, 50 बंदे की, 100 बंदे की सिक्योरिटी को बाईपास करके, क्रैक करके, हैक करके सिस्टम में एंटर करना इज इजी, आई वुड से। बट एट अ सिंगल टाइम, सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, मिलियंस ऑफ सर्वर्स को बाईपास करके हैक करना इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सबसे बड़ा फायदा है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क का कि ये जो मिलियंस ऑफ सर्वर है ना, आप इनको एक साथ तो कर नहीं सकते, और आपको एट अ टाइम बेसिकली ब्लॉकचेन, यू वांट टू हैक इनटू ब्लॉकचेन, तो उसका एक क्राइटेरिया होता है, जैसे कि बिटकॉइन का है कि इफ यू हैव हैक 51% ऑफ द पीयर्स ना, तो यू विल बी एबल टू कंट्रोल इट। कुछ ब्लॉकचेन्स का होता है 70%, 75%, बट आपको पता होता है कि 70-75% करना भी इज नॉट पॉसिबल, not for a country, not for a group. It will cost trillions of dollars, and like something like this, it will need you quantum computers. I'll share this PPT with you if you want, no worries. I'll share it in a group itself. So there's millions of nodes are there जिसको bypass करना होता है, then it will need you quantum computers, a lot of quantum computers to do it. So जब quantum computers का रेन आएगा, तब we can say कि blockchain is not secure anymore. But right now we would not. ओके, सो इसमें लेट्स से कोई नया ब्लॉक ऐड हुआ, देयर इज अ लॉट ऑफ रूल्स कि कोई नया ब्लॉक कैसे ऐड होता है। लाइक नया ब्लॉक ऐड होता है तो लाइक सारे पीयर्स में जाता है। लेट्स से मैंने कोई ब्लॉक माइन किया तो मेरे पे ऐड होगा, फिर वो वेरीफाई होगा, फिर सामने वाले मेरे कनेक्टेड पीयर्स से होगा। लेट्स से मैं ए हूँ और कोई नया डेटा आया मेरे ब्लॉक पे ऐड हुआ, तो पहले यहाँ पर ऐड होगा, ए में ऐड होगा, देन मेरे कनेक्टेड पीयर्स बी, ई और सी के पास जाएगा, देन डी के पास जाएगा। दीज आर टेक्निकलिटीज। बिफोर मूविंग ऑन टू दिस ना, लेट मी एक्सप्लेन यू समथिंग मोर अबाउट इट। ब्लॉकचेन
looks like this. Let me show you. हाँ जी, तो अब ब्लॉकचेन ना लुक्स लाइक दिस. कैसे? there's a block. First block is always called genesis block. तो लेट्स से अभी ब्लॉकचेन की नई शुरुआत हुई है, तो यहाँ पर ब्लॉक नंबर होता है, ठीक है. फिर there's a data. अच्छा, डेटा के साथ there's a lot of things. there's a nouns, there's a lot of technicalities that in a block. So क्या होता है कि उस ब्लॉक में ब्लॉक नंबर हो गया, चार पांच फालतू चीजें और हो गई, मतलब फालतू हमारे लिए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. देन देयर इज अ डेटा जो आपको स्टोर कराना है ब्लॉक में. देन देयर इज अ प्रीवियस हैश कि पिछले ब्लॉक का हैश क्या था. देयर इज अ नेक्स्ट हैश ऑफ द करंट ब्लॉक. अब हैश का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आया कैसे आ रहा है. इस पूरे ब्लॉक के डेटा को यहाँ तक प्रीवियस हैश से लेकर के ये पूरा डेटा उठाया और एक हैशिंग एल्गोरिथम में डाल दिया, SHA-256 में डाल दिया. गेटिंग अ पॉइंट गाइस, यू विथ मी? ठीक है. अब उससे जो हैश जनरेट हुआ ना, वो हैश हम यहाँ पे स्टोर कर देते हैं, वो हैश हम यहाँ पे स्टोर कर देते हैं, राइट. अब क्या होगा, नेक्स्ट ब्लॉक बनेगा, नेक्स्ट ब्लॉक में नया डेटा, नई इंफॉर्मेशन आएगी. फिर क्या होगा, प्रीवियस हैश, जो ये हैश है वो हैश यहाँ पे डलेगा और ये सारी डेटा, सारी इंफॉर्मेशन विद द प्रीवियस हैश एक नए हैशिंग एल्गोरिथम से पास होगा और उसका नया हैश जनरेट हो जाएगा. ऐसे ही ब्लॉक, सारे ब्लॉक्स आपस में इंटरलिंक होते हैं एंड दैट्स हाउ दे क्रिएट ब्लॉकचेन. ठीक. तो दिस इज चेन ऑफ ब्लॉक्स, ऐसे इंटरलिंक होते हैं. अब आई टेल यू क्या होता है इसमें सीन, कि लेट्स से किसी बंदे ने यहाँ पे जाकर ना डेटा पे जाकर चेंजेस कर दिए, इस डेटा पे चेंजेस कर दिए. गेटिंग अ पॉइंट? अब इस डेटा पे कुछ भी चेंज हुआ तो जब ये रीलोड होगा ना डेटा, तो इसका हैश, ये हैश चेंज हो जाएगा क्योंकि अब इसमें चेंज हो गया. आई टोल्ड यू, अ स्मॉल चेंज, एवलांच इफेक्ट याद करो हैशिंग का, स्मॉल चेंज इन द इनपुट ड्रास्टिकली चेंजेस द आउटपुट. ठीक है. तो ये हैश चेंज हो जाएगा. नाउ यू विल सी कि ये हैश और इसका प्रीवियस हैश मैच नहीं कर रहा आपस में, राइट. तो जब ये दोनों मैच नहीं करेंगे तो यू विल सी कि यहाँ पे कोई भी डेटा चेंज हुआ है, कोई छेड़खानी हुई है. सो लेट्स से एक हैकर ने बहुत मशक्कत की और एक ब्लॉक में जाके चेंज कर दिया कुछ. यही करता है ना बेसिकली, आप यही करोगे क्योंकि पढ़ तो देखो आप नहीं पाओगे कोई भी इंफॉर्मेशन तो ओपन सोर्स ही पड़ी है सारी, आप पढ़ लो, पढ़ सको तो. उसके लिए तो कोई हैक नहीं करेगा. हैक यही करेगा कि आपके डेटा चेंज कर दो, राइट. सो आपका जो सिक्योरिटी रिस्क है वो ये है कि डेटा चेंजेस ना हो. अब डेटा चेंज कर भी दिया तो विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि किस ब्लॉक में कहां पर क्या डेटा चेंज हुआ है. एंड सिंस द SHA-256 इज डिटर्मिनिस्टिक, राइट, तो we'll be able to retrieve this information कि जो चेंजेस हुए हैं उसको रिट्रीव कर ले हम वापस से. सो एल्गोरिदम का ये फायदा है हमारे केस में, ब्लॉकचेन में टेक्निकलिटीज ऐसे वर्क करती हैं. देन वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दी स्लाइड्स कि डिस्ट्रीब्यूटेड पीयर टू पीयर नेटवर्क कैसे होता है. ये बेसिकली सारी चीजें यहाँ पे समझाई गई थी, राइट. देन देयर कम्स कंसेंसस मैकेनिज्म, क्या होता है. ठीक है. सो देयर इज अ थिंग, प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक. कितने लोगों ने सुन रखा है? ओके. found this hash by SHA-256. No, it's not reversible. Yes, definitely your question is very much valid. We'll come to this question at the end of the session. No worries. मैं इसको जल्दी से wrap up करता हूँ. Then you guys can ask all the questions. Just be ready with the questions. So proof of work और proof of stake mostly मैं आपको आखिर last second topic को समझा रहा हूँ. So proof of work क्या होता है? I'll tell you क्या होता था Bitcoin पे. Bitcoin के साथ सबसे major problem क्या थी? जिन बंदों ने सुना है वो बता दो एक बार बोल के. सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या थी बिटकॉइन के साथ? बता सकते हो, गलत हो गए तो मैं काटने थोड़ी दौड़ूंगा यार. बोल सकते हो जो भी तुमको लगता है. Sir, Bitcoin transactions are not traceable. नहीं, Is that a disadvantage? they are traceable. They are anonymous. हर ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन anonymous होगी बट ट्रेसेबल है. Okay. अब ट्रेसेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है क्योंकि anonymous है. तो आप किसको ट्रेस कर रहे हो? भूत को. ये सीन होता है. यू आर ट्रेसिंग एन anonymous person. दिस इज द केस. बिटकॉइन के साथ किसी ने ये सुना है कि एनर्जी बहुत लेता है? हाँ, जी शिवानी ने सुन रखा है, अंशुमान ने सुन रखा है. क्या होता है ना, बिटकॉइन के साथ एक मेजर प्रॉब्लम थी. अर्जेंटीना एज अ कंट्री एक साल में जितना एनर्जी यूसेज करता था ना, बिटकॉइन वाज यूजिंग दैट इन अ वीक ग्लोबल लेवल पे. अकेले पूरे अर्जेंटीना कंट्री का एनर्जी यूसेज वाज इक्विवेलेंट टू बिटकॉइन का वीकली एनर्जी यूसेज. इतना एनर्जी यूज कर रहा था. अब करंट सिनेरियो क्या है कि वी आर वेरी एनर्जी सेंसिटिव मार्केट,
राइट। हम एनर्जी ऐसे फालतू नहीं जा सकते। क्यों करता था, उसका रीजन ये था कि आई टेल यू प्रूफ ऑफ वर्क, क्योंकि बिटकॉइन था प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता था। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई क्रिप्टो माइनर्स क्रिएटेड जीपीयू शॉर्टेज, क्योंकि वो जीपीयूज भर भर के यूज कर रहे थे। अब उसका रीजन क्या था जीपीयू यूज करने का, कि लेट से हम 40 लोगों का ये नेटवर्क है, ठीक है। अब हम पैसे कैसे कमाएंगे, ठीक है। हमने अपने सिस्टम्स को लैंड कर दिया, हमारे सिस्टम पे आएगा एक नया ब्लॉक विद नई इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब हमने अभी ब्लॉक देखे थे, एक नया ब्लॉक आएगा विद नई इंफॉर्मेशन। अब क्या होगा कि उसको ब्लॉक हमारी चेन में ऐड करना है। चेन में ऐड करने से पहले देयर इज अ लॉट ऑफ मैकेनिज्म टू ऐड इट, ठीक है। उसको वेरीफाई करना पड़ेगा कि ब्लॉक में जो भी चीजें आई हैं वो सारी वैलिड है कि नहीं है। अब वो अलग इंजीनियरिंग है पूरी, मान लो, ठीक है। उसमें मैं नहीं जा सकता। अभी मैं यहाँ पे 10 घंटे भी ले लूँ तो पूरी थ्योरी समझा नहीं सकता कि कैसे होता है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज अंदर से, कि उस ब्लॉक को ऐड करने से पहले वेरीफाई तो करोगे, राइट, कि सही ब्लॉक है कि नहीं है, इसमें कोई वायरस तो नहीं है, इसमें कोई एबनॉर्मेलिटीज तो नहीं है, ये ब्लॉक जेन्युइन है कि नहीं है। जेन्युइन है कि नहीं है मतलब ये होता है कि हो सकता है कि किसी हैकर ने पिच इन कर दिया हो अपना खुद का ब्लॉक, जो कि सेंसिबल ना हो, जिसकी गैस फीस ना भरी गई हो। तो लॉट ऑफ थिंग, बहुत सिंपल सी चीज है वेरीफाई करना, वैलिडेट करना, ब्लॉक वैलिडेट करना बहुत सिंपल सी चीज है, और वेरीफाई करना भी। बट क्या होता है कि हम 40 लोग के पूल में, एक पूल होता है उसको कहते हैं मेमपूल। Ramakrishnan Chaudhary has given some great insights. Nails block not all. That's the problem on our side and our system do the same. Exactly. I'm coming to this point only. कि क्या होता था कि एक प्रॉब्लम आती है हमको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लो इसको ऐसा कि एक प्रॉब्लम आ रही है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास सॉल्व करने के लिए। वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जिस बंदे ने, वो बंदा वैलिडेट कर दे, देखो प्रॉब्लम सॉल्व हुई, आंसर मैच कर गया, मतलब कि ब्लॉक सही है। समझ गए सारे लोग कि ब्लॉक कैसे वैलिडेट होता है ऊपर ऊपर से। एक प्रॉब्लम आई, उसको सॉल्व की, आंसर मैच कर गया, सही है, सिंपल सा चीज। अब क्या होता है, प्रॉब्लम जब आती है ना 40 लोगों के पास, तो अब यू गाइस नीड टू बी मोर इंटरेक्टिव ऑन दिस थिंग, ठीक है। टेल मी, एक प्रॉब्लम आई और उस प्रॉब्लम के साथ एक रिवॉर्ड मनी आया 5 लाख रुपए का। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई भी वास्तविकता से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आई टेल यू गाइस, ठीक है, 5 लाख नहीं आ रहे किसी को, बट द थिंग इज लाइक दिस, 5 लाख रुपए आए। नाउ यू विल टेल मी कि तुम लोगों का फर्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। हम 40 लोग हैं, 40 लोग पे एक ही प्रॉब्लम है, कोई भी बोल दो यार। टेल मी, लाइक से एनीथिंग यू वांट। पहला प्लान ऑफ एक्शन क्या, पहली चीज क्या करोगे। टेल मी फास्ट। अरे ठीक है, कोई जज नहीं कर रहा है, गाइस कैन से। Sir, can you explain the problem statement again? I didn't quite follow. ओके, प्रॉब्लम सेट में बताता हूँ। हम 40 लोग का एक मेमपूल है, पूल है। हम लोग आपस में एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, इमेजिन दिस, राइट। हम आपस से कनेक्टेड है, पीयर टू पीयर नेटवर्क है हम, ठीक है। हम सबने अपने कंप्यूटर और फोन से ज्वाइन किया होगा। लेट्स से यू वी गाइस आर कनेक्टेड एज अ कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, राइट। अब हम सब पे एक प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई, ठीक है। और सामने वाले बंदे ने बोला कि जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा मैं उसको 5 लाख रुपए दूंगा। कोई बंदे ने बोला, लेट्स। तो पहला क्या करोगे तुम, पहली चीज क्या करोगे। प्रॉब्लम छोड़, हाँ शुभम बोलो। So get the problem first and understand it what it says. Basically you'll solve the problem, right? Try to solve the problem, Shubham, right? Yes, sir. Absolutely. Yes. And you'll be competitive at the same edge, क्योंकि एक बंदे को 5 लाख मिलने हैं, राइट। एक बंदे को 5 लाख मिलने हैं 40 में, तो हम 40 के 40 लोग भर के एकदम से सॉल्व करने चले जाएंगे उस प्रॉब्लम को, राइट। कि हमें 5 लाख मुझे मिल जाए, राइट। अब कॉम्पिटिटिव मार्केट हम ये कर रहे हैं, ठीक, क्योंकि लेट्स से हम नहीं जानते दूसरे को, तो करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। नाउ यू विल टेल मी कि जीतेगा कौन। कुछ भी बोल दे यार इसमें, तुम इतनी तो बेसिक सेंस है इसमें, कौन जीतेगा। Sir, the person who solves the problem most efficiently and also the first, I guess. द फर्स्ट वन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। फर्स्ट वन कौन होगा सॉल्व करने वाला प्रॉब्लम, जिसकी एनालिटिक्स सबसे बेस्ट होगी, जिसका पोटेंशियल सबसे बेस्ट होगा, सबसे बढ़िया बंदा मैथ में, वही जीतेगा, राइट। अब सबके मैथमेटिकल स्किल्स तो बराबर नहीं हो सकती एट द सेम टाइम, राइट। तो वही जीतेगा जिसकी मैथमेटिकल स्किल सबसे बढ़िया है, सबसे पहले जिसने सॉल्व करके डाल दी। सेम थिंग हैपेंस विद दिस। नाउ इमेजिन कि आपने अपने अपने जीपीयूज लैंड कर रखे हैं और एक प्रॉब्लम आई,
ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्व कौन करेगा? जिसकी जीपीयू की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, ठीक है, वो सॉल्व करेगा। बट एट अ टाइम ना एक प्रॉब्लम नहीं आती, देयर इज अ मल्टीपल प्रॉब्लम, तो सबको थोड़ा थोड़ा पैसा मिल जाता है, मतलब कि सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने को मिल ही जाती है एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। बट क्या होता है ना कि अगर जो एक ही बंदे को आए तो ज्यादा पैसा मिलता है, ऐसा सीन होता है फिर। अब इसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या है, तुम लोग बताओ मेरे को, सबसे बड़े इसमें प्रॉब्लम क्या दिखी तुम्हें? Lot of energy being used. सब बाकी 39 लोगों की, 32 लोगों की एनर्जी तो वेस्ट हो गई ना। एग्जैक्टली, जलालुद्दीन हैज गिवन वेरी फेयर पॉइंट कि सॉल्व सबने करा इस होप में कि हमें मिलेगा, करेंगे सब, बट मिला किसे? जिसकी सबसे स्ट्रॉन्ग जीपीयू पावर थी। तो बाकी लोगों की एनर्जी और टाइम तो वेस्ट हुआ और उसका कोई रिवॉर्ड नहीं है, राइट? तो ये प्रॉब्लम है प्रूफ ऑफ वर्क के साथ, कि जो चीज लिटरली से कि 1 मेगावाट की एनर्जी में होना है, उस चीज में 100 मेगावाट की, 1000 मेगावाट की, लाख मेगावाट की एनर्जी ले रही है, राइट? सेम चीज इथीरियम के साथ भी थी। इथीरियम जब आया था तो प्रूफ ऑफ वर्क में आया था, देन इट पिवटेड टू प्रूफ ऑफ स्टेक। सो मेन प्रॉब्लम क्या होती है इसमें कि मिलियंस ऑफ नोड्स ऑफ वर्किंग फालतू, कि उनको मिलना भी नहीं पैसा उस प्रॉब्लम के लिए, बट दे आर वर्किंग, और हर वर्किंग में तो एनर्जी यूज हो रही है ना जीपीयू की। जीपीयू कहाँ से एनर्जी ले रहा है? इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है, तब मिल रहा है, राइट? जीपीयू गर्म बहुत होता है, लॉट ऑफ थिंग्स, तो वो कंप्यूटेशन एनर्जी फालतू जा रही है। तो प्रूफ ऑफ वर्क के साथ ये प्रॉब्लम थी। देन कम प्रूफ ऑफ स्टेक इन द एक्शन, कि प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या आया कि ठीक है, Shreyas, you are not audible. I think there is a network issue. So there is a network issue from Shreya's side. He'll be resolving it soon. So I have shared a Google Form link in the chat box. You all are requested to fill the form. It is a participation form which will help us regulate the attendance. I'm audible, guys? Yes, you are audible. Guys, my Wi-Fi is misbehaving actually. अभी no worries. So proof of stake में क्या सीन है? हाँ, गॉट इट। प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या सीन है कि प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या होता है कि आपको अपने जीपीयूज लैंड नहीं करने सिस्टम में। यू कम अप विद सम अमाउंट, दैट अमाउंट इन रियल लाइफ इज अराउंड 50 lakhs 55 lakhs। तो क्या करते हो आप कि 50-55 लाख रुपए ना एक वॉल्ट में जमा कर देते हो। मैं आपको इथेरियम का केस बता रहा हूँ, इथेरियम में ये होता है। अब ये होता है, पहले इथेरियम भी प्रूफ ऑफ वर्क में काम करता था, बट इसमें अब क्या होता है प्रूफ ऑफ स्टेक में कि आपने 50-55 लाख रुपए अपने स्टेक में कर दिया। जैसा मिनिमम बैलेंस कि आप इतना मिनिमम तो करोगे तब आप एक वैलिडेटर बनोगे। तो पहले क्या होता था कि आप अपने जीपीयू लेंड करते थे एंड यू बिकम अ माइनर। अब क्या होता है कि यू लेंड योर मनी एंड यू बिकम अ वैलिडेटर, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसका पूरा सिनेरियो होता कैसे है, ठीक। सो लेट्स से कि मैं हूँ, आशी है, चंद्रशेखर है, किरण, राइट। अब हम 4 वैलिडेटर हैं। लेट्स से कि मैंने 50 लाख लगाया, आशी ने 1 करोड़ लगा दिया, ठीक है, और चंद्रशेखर ने 2 करोड़ लगा दिए। अब इसमें सीन क्या होता है, पैसे ये एग्जैक्ट अमाउंट में बता रहा हूँ, ऐसा होता है रियल में। अब इसमें क्या होता है कि हम चारों वैलिडेटर हैं,
ठीक, तो कोई ज्यादा पैसे क्यों दे? अब सीन क्या चलता है, तुमने वो देखा है स्पिन द व्हील वाला? स्पिन द व्हील मतलब किया ना, व्हील स्पिन, गेम खेला है, पेटीएम वगैरह में खेला होगा, वॉचेस मिलते हैं जिसमें। एनीवन गाइस, हेलो हेलो। ओके, सो सिमिलरली लाइक दिस, कि 4 वैलिडेटर में हम सबको, rather than कि हम चारों को एक प्रॉब्लम मिल जाए, हम चारों वैलिडेटर को एक एक प्रॉब्लम्स असाइन की जाती हैं, रैंडम असाइनमेंट होता है 4 लोगों के बीच में। तो इट्स लाइक कि रैंडम असाइनमेंट ऑफ प्रॉब्लम बिटवीन ऑल द वैलिडेटर्स। अब रैंडमली असाइन होगा मतलब कि एक एल्गोरिथम चल गई और रैंडमली किसी का नाम आ गया, लकी ड्रॉ टाइप्स, और उस बंदे को प्रॉब्लम मिल गई सॉल्व करने को। अब उसको सॉल्व करने के लिए लाखों गुना कम एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, राइट? लिटरली इट कैन बी सॉल्व थ्रू अ फोन की एनर्जी। पहले कहाँ इतने हाई हैवी जीपीयू लगते थे, अब कहाँ छोटा सा फोन लग रहा है बस एक सॉल्व करने के लिए। मतलब इमेजिन करो तो इट्स लाइक दिस, बहुत कम एनर्जी में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ब्लॉक वैलिडेट हो गया, काम हो गया, राइट? ब्लॉकचेन का काम हो गया, ब्लॉक वैलिडेट हो गया। अब इसको मैकेनिज्म ये ऐसा काम करता है कि फिर आशी ने 1 करोड़ रुपए क्यों लगाए, चंद्रशेखर ने 2 करोड़ रुपए क्यों लगाए? क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी होती है रैंडम असाइनमेंट की, ज्यादा पैसे देने से बढ़ जाती है, राइट? तो इट वर्क्स लाइक दिस कि आशी ने 1 करोड़ लगाए, मैंने 50 लगाए, राइट? तो वो स्पिन द व्हील में ना आशी का नाम 2 बार आएगा और चंद्रशेखर का नाम 4 बार आएगा, मेरा नाम 1 बार आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने 50 लगाए, आशी ने 1 करोड़, मुझसे डबल अमाउंट लगाया, ठीक है? तो मेरा नाम 1 बार आया, आशी का नाम 2 बार आया, चंद्रशेखर ने 2 करोड़ रुपए लगाए, मतलब आशी से भी डबल, तो उसके 4 बार नाम आया, नाम लिखा। अब मैंने उस व्हील को घुमा दिया, ठीक है? तो सबसे ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी किसकी हुई? The one who gives the most amount of money. एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा चंद्रशेखर की है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चंद्रशेखर को सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, देखो किस्मत अभी भी है, हो सकता है चंद्रशेखर की किस्मत में ना लिखा हो, राइट? हो सकता है सारे मेरे को मिल जाए बार बार आकर, दैट्स अ डिफरेंट केस, दैट्स अ ट्रांसपेरेंसी इन द प्रोसेस। बट प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा चंद्रशेखर की है, क्योंकि चंद्रशेखर का 4 बार नाम आ रहा है। सिमिलरली आशी की प्रोबेबिलिटी Uh, मुझसे ज्यादा है। Excuse me, sir, I have a doubt here. हाँ हाँ, So, sir, over here in proof of stake, the difference between proof of stake and proof of work is in proof of stake, you basically need more money, but in proof of work, you need to have more computing power. Is that correct? यस, दैट्स अ डिफरेंट। बेसिकली प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता था कि एक प्रॉब्लम ऐसे ही फेंक दी गई कि जो सॉल्व करके ला देगा उसको मैं पैसा दे दूंगा, राइट? अब फेक देने में क्या है कि बहुत प्रॉब्लम्स थी, एनर्जी की थी, ठीक है? सब सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ठीक है, तुम ऐसा मत करो, तुम पैसे जमा कर दो यहाँ पे, विच विल बी यूज्ड एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। वो पैसे क्यों यूज होते हैं, आई टेल यू, कि लेट से मैंने कोई धांधली कर दी बीच में, मैंने कोई फालतू को, मेरे को एक ब्लॉक असाइन हुआ, अब मुझे पता है कि ब्लॉक गलत है, मैंने जानबूझ के उस ब्लॉक को वो कर दिया। अच्छा, ये सारी चीजें मैनुअली नहीं होती, सारी चीजें ऑटोमेटेड होती है, पर लेट्स से कि मैंने मैनुअल इंटरप्शन करके अपना कोई ब्लॉक डाल दिया, ठीक है? उससे हो सकता है मेरा फायदा हो, लाखों तरीके फायदे लेने के ऐसे करके, राइट? तो मैंने अपना कोई ब्लॉक ऐसे करके यहाँ पे सबमिट करा दिया, तो डिटेक्ट तो हो जाना है फ्यूचर में, बहुत जल्दी डिटेक्ट हो जाना है, विद इन मिनट्स। तो मेरे जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ना 50 लाख वाला, वो जब्त हो जाएगा मेरा। तो ताकि फालतू लोग ना आके नेटवर्क को खराब ना करें, हमारे पीयर टू पीयर नेटवर्क को खराब ना करें फालतू लोग आकर के, हम इथीरियम और बाकी सारी चेन से सिक्योरिटी डिपॉजिट रखती हैं। गॉट माय पॉइंट गाइस? Yes, sir. ओके, सो दिस इज द केस, इथीरियम वगैरह इसलिए सिक्योरिटी डिपॉजिट रखती हैं, और आप जब चाहो तब आपका ये सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको वापस मिल जाएगा। प्लस आप साथ में आपको जो प्रॉब्लम्स असाइन हो रही हैं उसको सॉल्व करने के लिए हैवी ट्रांजेक्शन फीस मिलेगी, और आपका खर्चा 0। तो आपके अभी जो आपका एक्सपेंस था, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस था, वो तो खत्म हो गया। इनफैक्ट आपका एक 50 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट जा रहा है, जो शायद तक पहले जीपीयू खरीदने में भी जा रहा था, कोट एंड कोट 20-30 लाख रुपए आपके तब भी जा रहे थे जीपीयू खरीदने में भी। बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी अलग से, आपको कोई कॉस्ट नहीं है, आपने एक सिक्योरिटी डिपॉजिट डाला और आपको ट्रांजेक्शन फीस मिली, जो कि बहुत होता है, बहुत। बिटकॉइन माइनर्स को आपको पता है कितने पैसे कमाते हैं, सिमिलरली इट्स लाइक दिस ओनली, स्टेक होल्डर्स में भी सेम होता है। और आपने कोई धांधली करी तो पैसे नहीं मिलेंगे, वो सारी चीजें मैंने बताया वही है। सो ये वही है लिक्विड प्रूफ ऑफ स्टेक का कुछ, ये समझ में आ गया ना आप लोगों को कि प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या है डिफरेंस? अब यहाँ पे लिक्विड प्रूफ ऑफ स्टेक होता है, लिक्विड प्रूफ ऑफ स्टेक में थोड़ा सा डिफरेंट नया टर्मिनोलॉजी। इसमें क्या होता है कि लेट्स से कि मेरे पास 20 लाख रुपए है, लेकिन 50 लाख चाहिए मेरे को जाने के लिए। तो मैंने तुम 30 लोगों से बोला कि काम करो, मेरे को यार 1-1 लाख रुपए दे दो, तो 30 लाख रुपए हो गए मेरे पास, ठीक है? अब हम 30 लोग मिलके
हमने अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया और बेस्ड ऑन वही 1-1 लाख रुपए तुम सबको तुम्हारे हिस्से का रिटर्न मिल जाएगा वापस। लेट से हमने एक दिन में 50,000 रुपए कमाए, तो तुम सबको 1-1 हजार रुपए और मैंने 20 लाख डाले, इसलिए मुझे 20,000 रुपए मिल गए। सिंपली वर्क लाइक दिस। तो यहाँ पे हर तरीके से सारे तोड़ मोड़ के सारी पॉसिबिलिटीज में हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। देन देयर आर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ नहीं, सेल्फ एग्जीक्यूटेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो तुमको ब्लॉकचेन का इंफ्रास्ट्रक्चर समझ में आ गया, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर काम करता है, राइट? इंफ्रा कैसे काम करता है ब्लॉकचेन का। अब इसी पे तुमने कोड लिखकर कोई प्रोग्राम बना दिया विच विल बी इम्प्लीमेंटेड एंड एग्जीक्यूटेड ऑन ब्लॉकचेन, इंटरनेट में नहीं ब्लॉकचेन में होगा, राइट? तो उसको कहेंगे हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, राइट? एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स होते हैं बेसिकली। तो आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ब्लॉकचेन से इंटरेक्ट करते हो। अभी आप ये बताओ कितने लोग यहाँ पे डेवलपर है, कभी कुछ डेवलप कर रहा है? कितने लोगों ने डेटाबेस का नाम सुना है, एपीआई का नाम सुना है? सुना है बस, राइट? आप एपीआई की से क्या करते हो? डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हो, राइट? डेटाबेस कहाँ पे स्टोर होता है? इंटरनेट पे स्टोर होता है। मतलब कहाँ पे? ये जो कैपिटलिस्टिक लोग हैं हमारे, मेटा, गूगल, इन सबके सर्वर्स पे स्टोर होता है डेटाबेस, राइट? कहीं ना कहीं घूम फिर करके। अब इनके सर्वर्स में जो स्टोर होता है डेटाबेस, हम उससे इंटरेक्ट करते हैं। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है कि जो चीजें ब्लॉकचेन में स्टोर है या करनी है उससे इंटरेक्ट करती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो एपीआई बनती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की भी एपीआई बनती है, मिलती है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज अ वे टू एक्सेस बेसिकली ब्लॉकचेन, राइट? तो आप ब्लॉकचेन में एग्जीक्यूटेबल कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हो। सिमिलरली वही तरीका है, वही है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? और फिर बिटकॉइन और उसमें एक इसकी भी एक अलग स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है कि एक प्रॉब्लम आई थी बिटकॉइन के साथ। जब बिटकॉइन आया था ना, सातोशी नाकामोटो वाज इंडीड अ ग्रेट पर्सन, पर सातोशी नाकामोटो को क्या लगा कि लेट्स से किसी बंदे ने मेरे में एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, ठीक है? लेट्स से एक ओपन सोर्स नेटवर्क है इंटरनेट में, ठीक है? और मैंने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जिससे मैंने इनफाइनाइट लूप लगा दिया। सबको समझ में आई ये बात? सबको समझ में आ गई? हेलो 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 हेलो, हम Yes. ऑडिबल? ओके, ठीक है। तो मैंने एक इनफाइनाइट लूप लगा के ब्लॉकचेन में डाल दिया, चला जाएगा क्योंकि वैलिड चीज है, ठीक? अब चला गया तो क्या होगा? मेरी तो ब्लॉकचेन बैठ जाएगी, राइट? मेरी ब्लॉकचेन तो बैठ जाएगी क्योंकि इनफाइनाइट लूप चल रहा है लगातार। मेरी ब्लॉकचेन के सारे नेटवर्क एग्जॉस्ट हो जाएंगे, सबके जीपीयू एग्जॉस्ट हो जाएंगे, क्योंकि पूरे हमारे पीयर टू पीयर नेटवर्क में एक इनफाइनाइट लूप चलने लगा एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के कारण। तो इसलिए बिटकॉइन स्क्रिप्ट में क्या था कि इट वाज नॉन ट्यूरिंग कंप्लीट, मतलब आप लूप्स नहीं लगा सकते और बहुत सारे कॉन्सेप्ट कोडिंग के आप यूज नहीं कर सकते। फिर आया इथीरियम। बिटकॉइन की कम्युनिटी में देयर वाज अ पर्सन नेम विटालिक ब्यूट्रिन। विटालिक ब्यूट्रिन, देयर वाज अ पर्सन, 17 साल का लौंडा था, ठीक है? अभी भी वो ज्यादा एजेड नहीं है, 17 साल का लौंडा था। उसने बोला कि वी नीड टू मेक इट ट्यूरिंग कंप्लीट, मतलब कि लूप्स हम लगा सके। तो कम्युनिटी बिटकॉइन कम्युनिटी में था वो, तो किसी ने उसकी बात सुनी नहीं, ठीक है? देन ही केम बैक एंड ही मेड हिज ओन ब्लॉकचेन which we all know as Ethereum, which was a revolution in Web3. उसने क्या करा, एक सिंपल सा सोल्यूशन निकाला कि फॉर एवरी ट्रांजैक्शन और फॉर एवरी ऑपरेशन दैट यू एग्जीक्यूट, तुम्हें उसका पैसा देना पड़ेगा, राइट? उसके साथ एक गैस फीस एसोसिएट कर दी, राइट? अब इसमें सीन क्या है कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट का लूप जितनी बार एग्जीक्यूट होगा उतनी बार तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। तो इससे ब्लॉकचेन का भी फायदा, ये भी फायदा, तुम इनफाइनाइट लूप डाल दो, तुम्हारा अकाउंट बैलेंस जैसे एग्जॉस्ट होगा अपने आप तुम्हारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रुक जाएगा। मतलब कोई भी ऑपरेशन ब्लॉकचेन में एग्जीक्यूट तब तक नहीं होगा जब तक उससे रिलेटेड गैस फीस नहीं गई है। गॉट माय पॉइंट? तो विटालिक ब्यूटरिन का ये सिंपल सा सॉल्यूशन था। इसके बाद से ब्लॉकचेन में डेवलपमेंट स्टार्ट होने लग गई कि हम ब्लॉकचेन में एप्लीकेशंस बना सकते हैं, ब्लॉकचेन के सारे यूज केस खुल गए। तो इसीलिए तुम देखोगे कि बिटकॉइन के कोई भी यूज केसेस नहीं है, बिटकॉइन बस चल रहा है सेंस, फंडामेंटल सेंस पे, एक लेगेसी पे चल रहा है। पर बहुत सारी ब्लॉकचेन उनके खुद के यूज केसेस है। किसी का डीफाई का यूज केस है, किसी का वही फाइनेंस में यूज केस है, किसी का सिक्योरिटी में यूज केस है, किसी का लाइक ट्रांसपेरेंसी में यूज केस है। देयर इज अ लॉट ऑफ यूज केसेस ऑफ ब्लॉकचेन, ठीक है? जैसे कि मैं तुम्हें खुद बताता हूँ, एक प्रॉब्लम थी एफआईआर मैनेजमेंट की, कि एक बंदे ने एफआईआर कराया, ठीक है? आज एफआईआर कैसे फाइल होते हैं, यू टेल मी गाइस। लेट्स से मैंने अपने एरिया पे एक एफआईआर फाइल कराई एक मिनिस्टर के खिलाफ,
राइट? तो क्या करेगा, डेटाबेस में ऑनलाइन फाइल कर देगा। सरकार का बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि हम ऑनलाइन कर देते हैं। अब उस मिनिस्टर ने क्या करा कि पुलिस स्टेशन गया और बोला कि मेरी एफआईआर हटा दो डेटाबेस से, तो वो आराम से डेटाबेस से एफआईआर हटा सकते हैं। गाइस टेल मी, Yes. कीप इन ट्रैक। Yes. हटा सकते हैं, कोई भी इसके कॉम्प्लिकेशन होंगे, कुछ नहीं होगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा एफआईआर कभी रजिस्टर हुई थी, किसी को पता नहीं चलेगा, राइट, कि एफआईआर कभी भी रजिस्टर हुई थी। तो ये चीज ऑनलाइन जाने के बाद भी बहुत फीजिबल और पॉसिबल है, बहुत आराम से। ठीक है, हो सकता है छोटा मोटा गुंडा ना करा पाए, उसकी पहुंच ना हो, एक मिनिस्टर एक सीएम की पहुंच तो होगी। तो बराबरी कहाँ हुई? पर लेट्स से तुमने एक ब्लॉकचेन से, मैं, ये हमारा खुद का एक प्रोजेक्ट था फॉर द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल, वी डिड इट। इट वाज अ हेल्थ ग्रीवेंस मैनेजमेंट, इट वाज अ ग्रीवेंस मैनेजमेंट पोर्टल एक्चुअली। ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट पे जब हमने काम किया था, तो वो ग्रीवेंसेस के लिए नेपाल में प्रॉब्लम ये थी कि ग्रीवेंसेस जो फाइल होते थे ना, तो उनको टारगेट दिया जाता था एम्प्लॉयज को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नेपाल के एम्प्लॉयज को टारगेट दिया जाता था कि तुम क्या करो यार, कि ग्रीवेंसेस को सॉल्व करो जल्दी से। जैसे हमारे यहाँ सीएम हेल्पलाइन है ना, वैसे उनका ग्रीवेंस पोर्टल था होम होम अफेयर्स का, खुद का। तो लोग क्या करते थे कि टास्क, सरकारी आदमी टास्क रीच करने के चक्कर में ग्रीवेंसेस हटा देते थे और किसी को कोई ट्रेस नहीं मिलता था। तो वहां वो ब्लॉकचेन के थ्रू इंप्लीमेंट करना चाहते थे। तो पूरा आइडिया वाज लाइक दिस कि एक बार एक ग्रीवेंस स्टोर हो गई तो ग्रीवेंस को हटाया तो जा सकता है, पर उसके ट्रेसेस ब्लॉकचेन में हमेशा रहेंगे। वी कैन ऑलवेज एक्सेस एंड नो कि इस डेट को इस टाइम पे एक ग्रीवेंस स्टोर हुई थी। गॉट माय पॉइंट? एक बहुत मेजर यूज केस आया इम्यूटेबिलिटी का। अब इम्यूटेबिलिटी देखो अपने अपने विल पे है कि तुम्हें इम्यूटेबिलिटी रखनी है कि नहीं रखनी। अगर तुम्हें ब्लॉक अपना खुद का सॉफ्टवेयर को इम्यूटेबल नहीं रखना तो इट्स टोटली अप टू यू, पर तुम चाहो तो रख सकते हो। वेब 3 में, वेब 2 में तुम चाह के भी नहीं रख सकते इम्यूटेबल। कितना रख लोगे? कहीं ना कोई पॉइंट आएगा जहां से तुम, चलो सब कुछ कर दिया, सर्वर से हटा दिया, क्या कर लोगे? यहाँ एक सर्वर तो है नहीं, यहाँ तो मिलियंस ऑफ नोट्स में स्टोर है ना तुम्हारा डेटा। मिलियंस ऑफ नोट्स से कैसे हटवाओगे? कितनी पहुंचोगी तुम्हारी? यू माइट बी अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएस बट यू विल नॉट बी एबल टू डू दिस, राइट? यहाँ पे ये केस आता है। तो एक बहुत मेजर यूज केस आ गया कि तुम ब्लॉकचेन के यूज केसेस को अपने इंप्लीमेंटेशन के लिए कैसे यूज करते हो। दिस इज द एंटायर आइडिया बिहाइंड वेब 3, राइट? तो ये सारी चीजें थी, ये मैंने बता ही दिया था तुमको। देन देयर इज अ गैस फीस, की गैस क्या होती है। तो गैस बेसिकली वही फीस होती है, तुमको मैंने बता दिया ऑलरेडी। अच्छा, बिफोर दिस ना गाइस, यू गाइस कैन लाइक मार्क योर अटेंडेंस। एक बार ये अटेंडेंस मार्क कर दो एंड यू गाइस कैन कीप आस्किंग मी क्वेश्चंस। शेयर हो रही है स्क्रीन? Yes, yes. एक बार सारे लोग ना अपने अटेंडेंस मार्क कर दो एंड विद द सेम थिंग लेट मी आल्सो मार्क इट एंड विद द सेम थिंग ना जिस इसके मार्क हो जाए ना, यू कैन लाइक स्विच ऑन योर माइक्स एंड कैन आस्क मी क्वेश्चंस। Hi, sir. I have a question. हम्म। So you mentioned about gas fees. So is gas fees the same as transaction fees, or is there anything different? ट्रांजैक्शन फीस ही गैस फीस होती है, उसका नाम है गैस फीस। Okay. बेसिकली जो आपकी ट्रांजैक्शन फीस लगती है, इट्स इन द फॉर्म ऑफ गैस, राइट? Okay. तो गैस बेसिकली ना, अब मैं आपको बताऊं कि लेट्स से आपसे किसी ने बोला कि आप मेरे को 2 बिटकॉइन दे दो, तो 2 बिटकॉइन देने की जगह मैं बोलूं कि ये 100 पॉइंट है, इन 100 पॉइंट की वैल्यू 1 बिटकॉइन के बराबर है, तो आप 200 पॉइंट ले लो। तो इट्स काइंड ऑफ दिस कि डायरेक्टली वो करने की जगह गैस से एसोसिएट होते हैं कि इतनी गैस लग रही है एंड वो गैस इक्विवेलेंट करती है एक अमाउंट, राइट? अब उसके पीछे भी रीजन है कि हम ऐसा क्यों करते हैं, ताकि बार बार डायरेक्टली क्रिप्टो करेंसीज ना, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज का जितनी बार ट्रांजेक्शन होता है ना, उतनी बार कॉस्ट लगती है ट्रांजेक्शन की। तो नहीं चाहते कि डायरेक्टली कॉस्ट लगे इतनी ज्यादा। नाउ या मोर क्वेश्चंस, यू क्लियर विद इट? Yes, sir. Any more questions, guys? Also, everyone is requested to fill the form because with the database we collect from it, we'll be giving you the certificates.
इंक्रिप्शन टेक्निक ऑफ, यश इंक्रिप्शन टेक्निक का ब्लॉकचेन से कोई लेना देना वैसे है नहीं, मतलब आई डिडंट गॉट योर क्वेश्चन एक्चुअली, बट इफ यू थिंक कि मतलब एक बार माइक ओपन करके कैन यू एक्सप्लेन मी द सेम? Anshuman, you want to say something? Future scope in Web3. There's a quote in Web3, we say कि people are overestimating. अच्छा, जॉब्स में देखो तो मेरा काम ही है, ठीक है, दिन के मैं 7 घंटे ना Web3 जॉब को देता हूँ, जॉब्स में भी आता हूँ, बट हाँ, द कोट इज समथिंग लाइक दिस कि people are overestimate what is Web3 now and is underestimating what Web3 will be over a decade. तो आज क्या है, जितना Web3 है उसको ओवर एस्टिमेट करते हैं लोग, और अंडर एस्टिमेट करते हैं उस चीज को कि 10 साल बाद Web3 का स्कोप क्या है. अच्छा, इफ यू वांट टू गो इनटू ब्लॉकचेन डेवलपमेंट ना, तो ऑलरेडी देयर इज अ लॉट ऑफ ब्लॉकचेन, यश, जिस पे आप ओवर रस्ट, सॉलिडिटी, ये दीज आर द लैंग्वेजेस जहां पे आप ना डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हो. सो दिस वाज बेसिकली फंडामेंटल्स के लिए था, इसलिए मैं थोड़ा सा टेक्निकलिटीज में गया था. इफ यू वांट ना, तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जहां आप कर सकते हो. जॉब्स के बारे में पूछा था, आई टेल यू गाइस क्या जॉब सिनेरियो है. मैं यहाँ से खुद जॉब लगाता हूँ. इंडिया के बंदे रहते हैं, वो भी जाते हैं, एपैक रीजन भी आता है, साउथ कोरिया, जापान, हर जगह के बंदे आर कनेक्टेड टू अस फॉर द जॉब्स, एंड हर जगह की कंपनीज आर कनेक्टेड टू अस, ठीक है, रिलायबल जॉब्स में. फ्रेशर्स के लिए Web3 में कोई स्कोप नहीं है. आई विल बी वेरी फेयर कि तुम ऐसा फ्रेशर चाहो कि मैं एकदम से जाऊं 50 लाख की नौकरी, भाई साहब, कोई स्कोप नहीं है, टेलिंग यू स्ट्रेट अवे. पर अगर तुम पे लिटरली 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस है विद Web3 और तुम्हारा ट्विटर अच्छा है, ट्विटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है Web3 में. Web3 तुम्हारा पोर्टफोलियो रिज्यूमे ना सब ट्विटर होता है. तुम साथ साथ ग्रो कर रहे हो, ट्विटर में सब कुछ डाल रहे हो, डेली पोस्ट कर रहे हो, इंगेज कर रहे हो, और तुम्हारा नेटवर्क अच्छा है ना, आई कैन टेल यू, तुम्हें फ्रंट एंड की बेसिक जॉब 50 लाख से स्टार्ट होती है. रिमोट जॉब, 4 days ऑफ वर्क, 4 days अ वीक का वर्क, 4 दिन का एक हफ्ते में, एंड 6 hours अ डे का वर्क तुम्हें 50 लाख का पैकेज देता है, ऑल इन हैंड, नो डिडक्शंस, जस्ट द टैक्सेस व्हिच यू हैव टू फिल. तुम जॉब्स ऐसी हैं, अगर तुम इन फ्यूचर जाते हो तो 2 साल 3 साल का, और सारी जॉब्स ऐसी, मिनिमम 50 लाख बता रहा हूँ, फ्रंट एंड की जॉब की बात कर रहा हूँ मैं, कि हमारा कंपनसेशन, हम $40,000 से नीचे के कंपनसेशन के साथ कंपनी के साथ साइन ही नहीं करते कभी भी. द रीजन मीन कि हमारे खुद की कॉस्ट नहीं निकलेगी, हमारा खुद का जो हमारा खुद का कमीशन होता है टू लाइक ऑनबोर्ड स्टूडेंट्स. वी डोंट चार्ज स्टूडेंट्स एनीथिंग, वी चार्ज कंपनीज टू ऑनबोर्ड देम सम स्टूडेंट्स, ग्रेट टैलेंट्स एंड ऑल, राइट. सो इसकी बहुत वैल्यू होती है, मतलब सारी कंपनीज इतना हाई पे करती हैं कि घर बैठे तुम 4 दिन की जॉब कर रहे हो, विच इज वेरी चिल. एक दिन में 6 घंटे की जॉब कर रहे हो. इंडिया में इफ यू आर इनटू जॉब, तुम्हें एक दिन में मिनिमम 8 घंटे करना पड़ता है, राइट. एंड दैट टू हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट पैकेजेस रेंज अराउंड 50 lakhs. I don't think everyone gets it, but in Web3 everyone gets a packages of 50 lakhs, 60 lakhs, 40 lakhs on an average, like this, from India, and that to remote. So it's like this. जॉब सिनेरियो मार्केट आज की डेट पे ऐसा है. What will happen without blockchain, and is blockchain that much important? See, बिना ब्लॉकचेन भी दुनिया चल रही थी, चलेगी, ठीक है. देखो, तुम एग्जांपल देता हूँ मैं, एआई बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, राइट. बहुत इंपॉर्टेंट है एआई, सब मानते हैं चीज. एआई के बिना, एआई के पहले तुम्हारी जिंदगी में कुछ कष्ट आए, मतलब कि प्रॉब्लम्स आई कुछ भी? आई डोंट थिंक ना कि जब तक एआई नहीं था तो जिंदगी तो किसी की रुक नहीं गई थी, जबकि एआई इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन ब्लॉकचेन, आई विल से दिस. तो सिमिलरली ब्लॉकचेन के ना रहने से कुछ ऐसा नहीं है कि कोई पहाड़ टूट जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा, बट ब्लॉकचेन इज समथिंग की न्यू फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी है. तो नई टेक्नोलॉजीज के साथ नए इनोवेशंस आते हैं, नए इनोवेशंस के साथ बहुत सी प्रॉब्लम्स जो एग्जिस्ट करती हैं वो सॉल्व होती हैं. जब रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने बताऊं, इंडिया में सट्टेबाजी बैन है, राइट, बट तुम Web3 में कर सकते हो. तुम कोई भी ऐप बना के लॉन्च कर सकते हो, देयर इज नो लायबिलिटी, तुम्हें कोई पकड़ के नहीं लेके जा रहा है. मतलब डोंट गेट मी रॉन्ग गाइस, इट्स जस्ट माय वे टू कम्युनिकेट थिंग्स, बट द थिंग इज कि हाँ, ये भी एक तरीका है, ऑल्दो इट्स रॉन्ग, इंडिया में इट्स इलीगल,
तुम सट्टेबाजी नहीं कर सकते, बट तुम वेब थ्री में तुम कर सकते हो, और होती है। तुम डायरेक्टली बैटिंग कर सकते हो, डायरेक्टली वो कर सकते हो। तो ये यूज केसेस बहुत सारे हो सकते हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। यस, जो मेटावर्स का AR VR है ना, अब आई टेल यू दिस वेरी थिंग। AR VR इज बेसिकली तुम्हारे हार्ट बीट से लेकर के ब्लड प्रेशर से लेकर के एक माइन्यूट से माइन्यूट इन्फॉर्मेशन उन पे होती है, राइट। बिना ब्लॉकचेन का यूज करे AR VR इंडस्ट्री खत्म है, बना ही नहीं सकते तुम, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन और वो जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना मेटावर्स का, इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स, ये सारी चीजें वेब3 से ही पॉसिबल है। और जो मैंने तुमको फंडामेंटल बताया है ना, वही सारे फंडामेंटल यूज होते हैं AR VR में भी। इंटरनेट में करोगे तुम्हारा डेटा चुरा के कोई भाग जाएगा। इंटरनेट में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, तुमने देखा होगा ट्विटर डाउन चला जाता है आधे टाइम, साल में महीना भर तो ट्विटर डाउन रहता है। एक बार वेब3 में कोई चीज लाइव चली गई ना, इट कैन नेवर गो डाउन ब्लॉकचेन में। क्यों? क्योंकि उसको चलाने के लिए 4 लाख 5 लाख नोड्स हैं, 5 लाख 4 लाख पीयर्स है। जब तक कोई एक पीयर भी एक्टिव रहेगा, तब तक वो एप्लीकेशन लाइव रहेगा थ्रू आउट द इंटरनेट, थ्रू आउट द ग्लोब। दिस इज द केस। यार तुम्हें डेवलपमेंट सीखना है, वेरी वेरी ग्रेट। मैं तुम्हें लेट मी डू दिस। मैं ना तुम्हें पहले तो ये PDF भेज देता हूँ, ठीक है। यू कैन गो थ्रू दिस PDF, और बहुत से यूट्यूब में है। पहले ब्लॉकचेन फंडामेंटल को क्लैरिटी रखो ब्लॉकचेन फंडामेंटल्स के लिए, राइट। सबसे पहला स्टेप ये है कि ब्लॉकचेन में यू वांट टू गो इनटू ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, क्लैरिटी रखो फंडामेंटल्स की। दूसरी चीज, फंडामेंटल्स की क्लैरिटी जैसे ही आए ना सबको, सारे भागो ट्विटर अकाउंट बनाओ। ट्विटर अकाउंट में 200-300 फॉलोवर भी इज अ गुड थिंग। मैं तुम्हें बताऊं कि मैं 2 साल से था एंड आई नेवर मेड अ ट्विटर अकाउंट। मैंने रिसेंटली जॉब ज्वाइन करने के बाद आई गॉट टू नो कि कितना इंपॉर्टेंट होता है ट्विटर। मैं यहाँ पे एक बार अपना ट्विटर भी शेयर कर दूंगा, यू गाइस कैन कनेक्ट विथ मी ओवर ट्विटर। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे ओपनिंग्स भी निकलती रहती हैं, तो लाइक आई लाइक यू आर एलिजिबल फॉर समथिंग, सो यू कैन डायरेक्टली रीच आउट एंड सो या मैं अपना ट्विटर शेयर कर लेता हूँ, गाइस कनेक्ट विथ मी। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, दूसरा स्टेप क्या है कि ब्लॉकचेन फंडामेंटल पढ़ने के बाद भाग के जाओ ट्विटर बनाओ। ट्विटर पे 6 महीने आंख मूंद के एक्टिव रहो। तुम्हारे हो सकते हैं 6 महीने में 300-400 फॉलोअर हो, उन 300-400 की बहुत वैल्यू है। जाओ लोगों से इंटरेक्ट करो, ठीक है। ये चीज तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारी पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट ना। लिंक्डइन में ऑडियंस, जलालुद्दीन, ऑडियंस ट्विटर ट्विटर पे ही सारी है, लिंक्डइन पे नहीं है। लाइक आई टेल यू, तुम्हें लेट से जॉब चाहिए, तो जो जॉब देगा ना वो ट्विटर पे है, वो लिंक्डइन पे एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो वेब3 की पूरी कम्युनिटी जो है ना ट्विटर के अराउंड वर्क करती है। तुम लिंक्डइन में जाओ, लोग पोस्ट करते हैं, दिस इज कम्प्लीटली इरिलेवेंट। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि 5-5 हजार करोड़ के मालिक है, पैसे के नाम से बात कर रहा हूँ, कि 5-5 हजार करोड़ की कंपनियों के मालिक हैं, और उनका ट्विटर पे 500 फॉलोअर नहीं है। सॉरी, ट्विटर कह रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, गेटिंग इट रॉन्ग। उनके लिंक्डइन में 500 फॉलोअर नहीं है, लिंक्डइन में इतने इनएक्टिव है। और ट्विटर पे दे हैव 5 लाख फॉलोअर, 4 लाख फॉलोअर। एंड आई कैन रेफर यू गाइस, ऐसे ऐसे बहुत सारे बंदे मैं तुमको बता सकता हूँ अभी भी। मैं PDF अभी ग्रुप में भेज देता हूँ। और कैरियर कैरियर की ही, आकाश कैरियर की ही मैं बात कर रहा था कि हाउ वी स्टार्टेड, कि पहले मैं ये एक बार शेयर कर दूं कि डेवलपर्स अपडेट @6, दिस वन इज ना आशी। Yes, you can share it to Chandra as well. We want sharing it. एक बार मैंने भेजा है, मैंने आपकी सही जगह भेजा कि नहीं भेजा, एंड यू गाइस कैन लाइक फॉरवर्ड इट। Okay, it's not a main group. Can you just send me hi on WhatsApp? I'll share it to you. और it has reached you. आप वहां से डाउनलोड कर लो, तो फिर मैं हटा दूंगा, नो वरीज, ये हटा देना आप। देखो आपको पहुंची है नहीं पहुंची, सो ठीक है। मैं तुम्हें आगे अपडेटेड शेयर वो भी शेयर कर दूंगा। अच्छा, ब्लॉकचेन कनेक्टेड टू, देखो अपनी अपनी ऑडियंस होती है, ठीक है। अब तुम्हें
टेक में कुछ करना है तो तुम कहाँ जाओगे? यूट्यूब में जाओगे। देयर आर टेक्निकल गुरुजी, देयर आर पीपल हु आर एक्टिव ऑन यूट्यूब, राइट? तो जो ऑडियंस, देखो ऑडियंस बताता हूँ मैं, वेब3 पे ना बहुत सारे लोग नहीं है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि वेब3 पे करोड़ों लोग हैं। वेब3 पे कुछ हजार और लाखों में लोग हैं, एक्टिव पीपल आर देयर अराउंड द ग्लोब, लाखों में, ठीक है? तो उन लाखों में जो लोग एक्टिव हैं वो ट्विटर पे एक्टिव है, ठीक है? ट्विटर पे एक्टिव क्यों है कि विटालिक ब्यूटरिन जब आए वो ट्विटर पे एक्टिव थे। ट्विटर पे बहुत सारे लोग एक्टिव होते हैं, यू नो ना, क्योंकि ट्विटर यूज करने के लिए फायदा रहता है। तो जो बड़े बड़े इनिशियली में जो जायंट्स है ना, ओजी आए हमारे वेब3 पे, वो ट्विटर पे एक्टिव थे, तो सारी ऑडियंस शिफ्ट हो गई ट्विटर पे। तो ट्विटर इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्विटर पे ही हायरिंग होती जाती है। मतलब आई टेल यू दिस वाज अ केस विद अस, मैंने पर्सनली उस क्लाइंट